السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ تقریب، اس پاکیزہ اور نورانی محفل میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب، آج کی یہ بابرکت محفل نکاح کے تعلق سے ہے، شادی کے تعلق سے ہے. تو بس 5-10 منٹ کے لیے چند ضروری باتیں میں نکاح اور شادی کے تعلق سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ یہ چلے کہ اللہ رب العزت نے یہ نکاح اور یہ شادی ہمیں کیوں عطا فرمائی ہے، اس کا نظام کیوں بنایا ہے، اور آج ہم نے جو طریقہ بنایا ہے وہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. آپ یہ جان لیں نکاح ہمارے اور سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے. نبی کی سنت کا نام نکاح ہے. سرکار حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جو میری سنت سے دور بھاگا، سرکار فرماتے ہیں فلیس منی، اس کا اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے. جو میری سنتوں سے منہ موڑتا ہے، جو میری سنتوں سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگتا ہے. تو نکاح کرنا یہ نبی کی بہت پیاری سنت ہے، اور نبی کی سنت ہونے کی وجہ سے نکاح کرنا یہ عبادت ہے. اس لیے نبی کی ہر سنت عبادت ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن میں یہ بتاؤں کہ انسان کی زندگی کے 3 دور، 3 اس کے زندگی میں پیریڈ ایسے آتے ہیں جو بڑے اہم ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ ایک موقع ہوا کرتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے. پھر جب اسی بچے کی شادی ہوتی ہے یہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے. پھر آگے چل کر کے جب ہمارے گھر سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ 3 دور انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو بڑے اہم ہوا کرتے ہیں. ایک اس کی پیدائش کا موقع، ایک اس کی شادی کا موقع، اور اس کی انتقال کا موقع. یہ 3 اہم موقع ہوا کرتے ہیں. لیکن ہمیں جس طریقے سے پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں ان 3 اہم موقعوں پر بھی شریعت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو تو ہم خوشی کس طریقے سے منائیں. اس لیے کہ آج ہمارا کوئی انوکھا گھر نہیں ہے کہ صرف آج ہمارے ہی گھر پر بچے کی ولادت ہوئی ہو اور ہم ہی خوشیاں منا رہے ہوں، بلکہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر پر بچے کی ولادت ہو تو ہمیں خوشی کس انداز سے منانی ہے، خوشی کس طریقے سے منانی ہے، تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں. اس لیے کہ سرکار اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ حیات ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ نے
अपने नबी को, अपने रसूल को हमारे लिए आइडियल बनाकर भेजा है। अगर हम इस दुनिया में किसी को फॉलो करना चाहते हैं, किसी के पीछे चलना चाहते हैं, किसी का तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका हमारे लिए हमारे नबी की जिंदगी का तरीका। तो अगर हमें ये देखना है हमारे घर में बच्चे की विलादत हमें खुशी किस तरीके से मनाई जाए, तो आओ नबी के दरवाजे पर आ जाओ, नबी की बारगाह में आ जाओ और जरा ये देख लिया जाए कि जब नबी का शहजादा, जब नबी का नूरे नजर, जब नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो मेरे आका ने खुशी किस अंदाज से मनाई है, मेरे आका ने खुशियां किस अंदाज से मनाई हैं। जिस तरीके से हमारे आका ने खुशियां मनाई हैं, हमें भी उसी तरीके से खुशी मनानी चाहिए। जिस तरीके से हमारे नबी ने खुशी का तरीका इख्तियार किया है, हमें भी अपने घर में उसी तरीके से खुशी का तरीका इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल फिर एक शादी का मौका आता है, तो शादी के मौके पर भी हमें नबी की शरीयत का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं। आज मुआशरे में बहुत ज्यादा बुराइयों ने जन्म ले लिया है। शादी के मौके पर बिलखुसूस हमारे अंदर इतनी रस्में, बेजा खुराफात दाखिल होती चली जा रही हैं, जिसकी नहूसत की वजह से हमारे निकाह की बरकतें खत्म होती चली जा रही हैं। अगर हम उन रस्मों को, बेजा खुराफात को खत्म करें, तो फिर जो निकाह की बरकतें अल्लाह ने निकाह में रखी हैं वो हमें देखने को मैसर आएंगी, वो हमें देखने को मिलेंगी। इसलिए कि निकाह कोई छोटी मोटी इबादत का नाम नहीं है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत है, सिर्फ रोजा रखने का नाम इबादत, सिर्फ हज और ज़कात का नाम इबादत है। मैं आपको बताऊं, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए घर से, नमाज पढ़ने के इरादे से निकले, आपने वुजू बनाया, तो आप घर से मस्जिद तक जाएंगे, आपके हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी अता फरमाएगा। आप मस्जिद पहुंचे, आपने नमाज अदा की, 10 रकात, 4 रकात, 12 रकात, 17 रकात, जो भी नमाज पढ़नी है, तो जब तक आप नमाज पढ़ रहे थे आपको इबादत का सवाब मिल रहा था। लेकिन जैसे आपने सलाम फेरा, आपकी इबादत मुकम्मल हो गई, अब आपको सवाब नहीं मिल रहा है। अब आप मस्जिद से निकल कर आ गए, आपका सवाब बंद हो गया, आपका सवाब मुकम्मल हो गया, इबादत खत्म हो गई। इसलिए कि जब तक आपने नमाज पढ़ी है, जब तक पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया है, उस वक्त तक आपको इबादत का सवाब मिल रहा था। लेकिन अब आप मस्जिद के गेट से बाहर आ चुके हैं, अब आपको इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप रोजा रखिए, आपने सहरी की, अब आपका इबादत का सवाब शुरू हो गया। अगर नमाज पढ़ के आप सो जाए, ज़ोहर में उठे, लेकिन रब फरमाता है फरिश्तों, ये देखने में तो मेरा बंदा सो रहा है, लेकिन रोजे की हालत में है, रोजे की हालत में होने की वजह से इसको सोने पर भी सवाब अता किया जाता है। सोने पर भी उसको सवाब मिल रहा है, ज़ोहर बाद भी उसको सवाब मिल रहा है, असर बाद भी सवाब मिल रहा है। जैसे ही उसने खजूर से रोजा अफ्तारा, अब उसका इबादत उसकी मुकम्मल हो गई, सवाब उसका खत्म हो गया। इसी तरीके से आप देखें, बंदा हज करने जाता है, 40 दिन का सफर मुकम्मल करके आता है, तो जब तक वो हज में रहता है, जब तक मक्का और मदीने में रहता है, जब तक खाने कबा का तवाफ करता है, मिना और मुज़दलिफा जाता है, आबे ज़मज़म पीता है, मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात नफिल पढ़ता है। कहने का मतलब ये है, जब उसके 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, हज करके घर वापस आता है, इबादत बंद हो जाती है, सवाब बंद हो जाता है। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि निकाह एक ऐसी इबादत का नाम है, निकाह एक ऐसी बड़ी इबादत का नाम है कि जब तक बंदा निकाह करता है, जिस दिन से उस बंदे ने निकाह किया है, अब जब तक उसकी तलाक नहीं होगी या उसकी औरत का इंतकाल ना होगा, या मियां बीवी में से कोई एक इस दुनिया से चला ना जाएगा, जब तक उनका निकाह टूटेगा नहीं, परवरदिगार आलम हर सेकंड में उसको सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें कि निकाह करने के बाद इंसान कोई 10 साल जिंदगी गुजारता है, कोई 20 साल जिंदगी गुजारता है, कोई 50 साल जिंदगी गुजारता है, लेकिन इसमें सवाब बंद नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकाह नमाज से बड़ी इबादत है, रोजे से बड़ी इबादत है। मैं निकाह की अहमियत समझाना चाहता हूँ। जो आज हमने निकाह की अहमियत को समझा नहीं है, सिर्फ एक रस्म समझ लिया है कि बारात आई और खाना खाया चले गए, निकाह हो गया, नहीं, बल्कि निकाह की अजमतें बहुत हैं, निकाह की बरकतें बहुत हैं, हमने उसको समझा नहीं है। आइए ना हम देखें कि निकाह हमारे आका की प्यारी सुन्नत है। मेरे आका की सिर्फ एक ही तो सुन्नत नहीं है, बल्कि बेशुमार आका की सुन्नतें हैं। आप उलमा से पूछे तो आपको पता चलेगा कि हम मिसवाक करते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। बैठ करके 3 सांस में देख करके पानी पीते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। सर में तेल डालते हैं, मांग निकालते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। बैठ करके खाना खाते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। किसी को सलाम करते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। मोहताजों
बेचारों की, गरीबों की, मिस्कीनों की हम मदद करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। भूखे को खाना खिलाना ये भी नबी की सुन्नत, नंगे को कपड़ा पहनाना ये भी नबी की सुन्नत है। लेकिन आप उलमा से पूछें कि जब हम नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो उलमा आपको बताएंगे जब जब आप नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे तो आपको परवरदिगार आलम सवाब अता फरमाएगा, आपको नेकी मिलेगी। जब जब आप नबी की सुन्नतों को अदा करते चले जाएंगे आपको नेकियां मिलती चली जाएंगी। लेकिन निकाह नबी की ऐसी अजीम सुन्नत का नाम है, सरकार फरमाते हैं इदा तज़व्वजल अब्दु फक़द इस्तक़बल निस्फ़द दीन, कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो परवरदिगार आलम उसका आधा दीन मुकम्मल फरमा देता है। और सुन्नतें अदा करते हैं तो सिर्फ सवाब मिलता है, लेकिन निकाह जैसी अजीम सुन्नत को हम अदा करते हैं तो परवरदिगार आलम हमारा आधा दीन की हिफाजत फरमा देता है। फिर सरकार फरमाते हैं फलयत्तक़िल्लाह फिन निस्फ़िल बाक़ी, अब जो आधा दीन बाकी रह गया है उसमें अल्लाह से डरता रहे। उस मियाँ बीवी की जो शादी हुई है उसमें बीवी अपने शोहर के हक को अदा करती रहे और शोहर अपनी बीवी के हक को अदा करता रहे। अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारी जाएगी परवरदिगार आलम दोनों के ईमान की पूरी मुकम्मल हिफाजत फरमाएगा। निकाह बहुत अजीम सुन्नत का नाम है, बड़ी प्यारी सुन्नत का नाम है। वक्त इतना नहीं है कि सारी बातों को बताया जाए, लेकिन सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए हमने नात मुस्तफ़ा सुनी और सुनाई और नबी का और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, इसलिए कि उलमा फरमाते हैं, बल्कि हदीस पाक में मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ पर फरिश्तों की रहमत नाजिल हुआ करती है, फरिश्तों की आमद होती है, रब की रहमत बरसा करती है। तो ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है कि बहुत शादियां दुनिया में हुआ करती हैं, कहीं गाने बाजे हुआ करते हैं और कहीं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करता है। ये तो मुकद्दर की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपनी बारगाह में बुलाया करता है और कोई किसी को अपनी बारगाह से भगा दिया करता है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम इसी तरीके से निकाह की महफिलें मुनाकिद किया करें ताकि हमें निकाह की बरकतें देखने को मिले। हमारे घरों में जो आज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद तलाक पर नौबत आ जाती है, उसकी वजह यही है कि आज हमने शादियों को पता नहीं क्या समझ लिया है, उसमें 50 और 80 दाखिल करनी है जिनको हम बहुत जरूरी और फर्ज तसव्वुर करते हैं कि अगर ये रस्म अदा नहीं हुई तो मालूम निकाह नहीं होगा। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, इतना आसान करो, इतना आसान करो कि जिना भारी हो जाए। लेकिन आज हमने ये मामला बना लिया कि जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। अगर किसी बच्ची की विलादत, लड़की की विलादत किसी घर पे हो जाती है, उसी दिन से बाप टेंशन में हो जाता है इसकी शादी कैसे की जाएगी, 5 लाख 10 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा। बल्कि ये बेटी की आमद इसलिए नहीं हुई है हमारे घर में कि हम टेंशन में पड़ जाएं, बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी की पैदाइश होती है अल्लाह के फरिश्ते उस घर को देखने आया करते हैं, उस घर की ज़ियारत को आते हैं। बेटी रहमत लेकर के आती है, इसलिए कि बेटा जो होता है वो सिर्फ अल्लाह की नेमत हुआ करता है। बेटा अल्लाह की नेमत होता है, बेटी अल्लाह की नेमत भी होती है, अल्लाह की रहमत भी होती है। तो हम उनको बुरा तसव्वुर नहीं करना चाहिए। बहरहाल हुसूल बरकत के लिए चंद बातें मैंने आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करी। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज हमने जिस निकाह की महफिल में शिरकत की है, परवरदिगार आलम आज इस होने वाली शादी में, निकाह में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और इस निकाह के जरिए इनको नेक औलाद अता फरमाए और हम सब की दुआओं को मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और नमीरा खातून के हक में मकबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ पर आना, सुनना, सुनाना, बैठना, बिठाना सब कुछ अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।